કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપના દોસ્ત કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલના નમસ્કાર. હે 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 હો આહા જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. ધરતીનો છે છોડું મનડું એનું ભોળું. ધરતીનો છે છોડું મનડું એનું ભોળું. કથા છે ભઈ કથા છે ખેડૂતોની કથા છે. વ્યથા છે ભઈ વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે. ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી. મીઠી, હા, આ વરસાદ વરસી જો અને આ જૂન મહિનોય પૂરો થવાયો. તો શું કરું હવે? એ તો પૂરો થઈ જાય. ભાઈ મહિનો પૂરો થઈ જાય તો થઈ જાય, પણ મને હવે એમ લાગે છે કે કેરીઓની સિઝન પૂરી થઈ ગઈ. હા હા, કેરીઓની સિઝન પૂરી થઈ ગઈ ને તો મને તો હવે ગમતું નથી. એમ થાય કે શું ખાવાનું હવે એમ. એમ બીજું ફ્રૂટ તો નહીં ભાવતું. અરે પણ મીઠી, આ કેરી જાય તો પાછું બીજું ફ્રૂટ આવી જાય ને. પણ આવે પણ મજા ના આવે. પેલું તો કેરીનો રસ હોય તો રોટલી જોડ ખવાય, પૂરી જોડ ખવાય. એમ હા, ફરક પડે ને એમ. ભૂખ લાગે તો કેરીઓ ખવાય પણ ખરી એમ. એટલે મને લાગે છે કે આ કેરીઓ તને આખું વરસ યાદ આવશે. હે ને? મને આવશે, મારા છોરાઓને પણ આવશે. તું તો પાછી આ કેરીઓ પકવી એનો રસ કાઢી અને પાછો ફોટો પાડતી. હે ને? હા, ફોટો તો પાડતી, પાછું બધાને મોકલતી. મોબાઈલમાં બધા ફોટા પાડેલા છે. મને લાગે છે કે આ કેરીની સિઝન ગયા પછી આ બધા કેરીઓના ફોટા તું જોઈ જોઈને મન વારવાની. હે ને? ના, મન તો નહીં વારવાની. મેં છે ને બહુ બધી વસ્તુ બનાવી રાખીશ આ વખત કેરીમાંથી. એમ? હા, કેરીનો છુંદો બનાવ્યો, અથાણું બનાવ્યું, પછી પેલા કેરીના પાપડ નહીં આવતા ઓહો, એ પણ મેં બનાવ્યા છે. એમ? પછી મુરબ્બો બનાવ્યો છે. ઓહો હો, એટલે મીઠી કેરીની સિઝન ગઈ તો ગઈ, પણ કેરીનો ટેસ્ટ તો તારી દાઢે વરગેડો જ રહેવાનો. હે ને? મુરબ્બો સોરાઓને સ્કૂલમાં લઈ જવા માટે બનાવ્યો. હા, રોટલીને મુરબ્બો લઈ જાય ને. અને પેલું અથાણું તો બે જાતનો બનાવ્યો છે ને? હા, ખાટું અને મીઠું બે બનાવ્યું છે. મીઠું કે ગળ્યું? મીઠું પણ બોલાય છે અને ગળ્યું પણ બોલાય છે. મીઠી, તું આમ મીઠું વધારે બોલે. તારું નામ મીઠી ને એટલે તું ગળ્યું નહીં બોલતી. હા, મારું તો ખાલી નામ મીઠું છે, બાકી બધા તો એમ કે તમારો અવાજ બહુ જ કડક છે એમ કે છે. હા, પણ કહેવાય છે ને મીઠી કે જેનો અવાજ કડક હોય ને અંદરથી બહુ કોમળ હોય. હા હા, એવું કહેશે ખરા બધા. હવે એ તો મને શું ખબર. એમ? હા, પણ મીઠી, એ વાત તો બરાબર છે, પણ પેલું તે કહ્યું કે કેરીમાંથી પાછા પાપડ બનાવ્યા છે. એ પાપડ કેવા પાસે પેલા શેકીને ખાવાના? શેકીને નહીં, એમને જ ખાવાના. કેરીનો રસ થાળીમાં પાથરી દેવાનો અને પછી સૂકવી દેવાનો. એની જાતે થઈ જાય. પછી એ તો ઉખાડી લેવાના. તો આટલો બધો રસ કઈથી તું લાવેલી તે પાપડ બન્યા? રસ તો હોય જ ને. આપણે તો કેટલી બધી કેરીઓ થાય છે અને બધી તમને આપી હતી ને તમારા ભાઈબંધે. ઓહો હો, બધી કેરીઓ એમાંથી મેં કાઢ્યો તો રસ. મને ઘણી વાર થતું કે આ કોથળા બધા મિત્રો કેરીઓ આપે છે તો આટલી બધી કેરીઓ તો ખવાય નહીં ને આ બધી ઉકેડે જશે. ઉકેડે નહીં, મને ખબર હતી. તમને એમ કહે એની માને મોકલાઈ દેશે. મને બધી ખબર છે. એલું ભાઈ, તું તારી માન મોકલું તો મેં ના પાડી કે એના પિયરમાં બધી કેરીઓ આપી દેશે એમ. પણ તારી પિયરમાં કેટલા વાંબા છે તો પાસે અહીંથી કેરીઓ તું મોકલવાની હતી? તો મારે મોકલાવી તો પડે જ ને. હા ભાઈ, મોકલે મોકલજે, પણ તારી માએ કોઈ દાડ એમના તો એની કેરીઓ અહીં મોકલી છે? એ ના મોકલે તો એમાં હું શું કરું? મારે તો મોકલવી જ પડે ને. અરે પણ આ તો વાટકી વ્યવહાર એક બાજુનો ના હોય, બે બાજુનો હોય. પણ હું તો એક વાત કહું, હું તો કોઈ જોડે આશા નહીં રાખતી. આપણે આપણી ફરજ નિભાવી દેવાની. તો ભલે તારી માની યાર મોકલવી હોય તો મોકલજે, પણ આ તો ઋતુ તો જતી રહી ને. હા, જતી તો રહી, તો એ તો હું કરવાનું. હવે આવતી સાલ પાછી આવશે. પણ એક કામ કર મીઠી, કેરીઓ ભલે તે આ વર્ષે તારી માન તઈ નહીં મોકલી, પણ કેરીઓના ગોટલા તો સાચવી રાખ્યા છે ને. કેરીઓના ગોટલા મોકલ ને. મેં તો ગોટલા બધા ફેંકી દીધા ખાઈ ખાઈને. એમ? હા, ખેતરોમાં આમ છૂટા ફેંકી આવ્યા. મીઠી, આમ ખેતરમાં છૂટા નહીં ફેંકવાના. આ ગોટલામાંથી બધી ઘણી બધી વાનગી બને. એ મને નહીં ખબર. મને એમ કે બીજા ઓબા ઉગી જાય એમ કરીને મેં તો બધે ફેંકી આવી. ભાઈ આમ તો ઉકેડે
ટોપલો ભરીને તમે ગોટલા ફેંકો ને તો હજારો આંબા ઉગે, પણ એ હજારો આંબા આપણે કોદાળ રોપીએ છીએ ખરા? હા, તો એમ કે જાતે કદાચ એકાદ ઓબો ઉગી જાય એમ. ઓંબો તો ઉગી જાય, પરંતુ ઓંબો ઉછેરીને મોટો કરવો ને એ બહુ અઘરું હોય છે. હા કે કારણ કે ઓંબો આમ કંઈ ઉકેડા ઉપર આપણે જોઈએ ને કે ઓહો હો એને જાતે ઉગી ગયો, મસ્ત 4 પોણનો ઓંબો થઈ ગયો, ઉપાડી લાવીને મોટો કરીશ, ઉપાડીને લોકો લઈ જાય છે, ખેતરના શેઢે રોપે, વાડામાં રોપે, પણ પછી એની માવજત નહીં કરતા એટલે ઓંબાનું બાળ મરણ થઈ જાય છે. તો મને શું ખબર, મેં તો એવી રીતે ફેંદા ફેંકી દીધા. પણ મીઠી, આ ઓંબાના ગોટલામાંથી ગોટલીમાંથી ઘણી મુખવાસની આઈટમો બને છે. એટલે જ કહું છું કે આ કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં આજે આપણે છે ને ફળ પાકોનું મૂલ્યવર્ધન આ વિષય પર ખાસ કરીને એમાં આંબાની કેરીની પણ વાત આપણે સાંભળીશું. અને આ સરસ મજાના વિષય ઉપર વાતચીત કરવા માટે આકાશવાણી સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે વિષય નિષ્ણાત ફરીદ સૈયદ સાહેબ. એમની મુલાકાત સાંભળીશું, પરંતુ એ પહેલાં સાંભળી એક સરસ મજાનું ગીત. કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપના દોસ્ત કેતન રાવલના નમસ્કાર. મિત્રો, કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં આપણે ઘણી વખત બાગાયતી ખેતી, ધાન્ય પાકોની ખેતી, શાકભાજી પાકોની ખેતી વિશે વાત કરીએ છીએ. તેમાંથી કઈ રીતથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવું તેની વાત કરીએ છીએ અને તેના વેચાણ વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ. પરંતુ આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં કોઈપણ ખેત પેદાશનું મૂલ્યવર્ધન કઈ રીતથી વધુ કરી શકાય, તેમાંથી વધુને વધુ આવક કઈ રીતે મેળવી શકાય એ વિશે વાત કરવી છે. અને ખાસ કરીને આજના કાર્યક્રમમાં કેરી, સીતાફળ અને સિંગોડા આ 3 પાકમાંથી મૂલ્યવર્ધન કરી તેમાંથી વધુ આવક કઈ રીતે મેળવી શકાય એ વિશે વાત કરીશું. અને આ સુંદર મજાના વિષય પર વાતચીત કરવા માટે અમે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કરેલ છે ડૉક્ટર એફજી સૈયદ સાહેબને, કે જેઓ પોલિટેકનિક एग्रीकल्चर कॉलेज दाहोद આવે છે. तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ सैयद साहब को. सैयद साहब, आज के किसानवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार सर, धन्यवाद. सैयद साहब, ये मूल्यवर्धन है, प्रोसेसिंग कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग जी. ये सबसे पहले बताइए कि क्या होता है. जी, मूल्यवर्धन जैसे कि हम जो खेत पैदाश करते हैं उसको मार्केट में लाने से पहले हम उसका एक प्रोसेसकरण करते हैं, उसका प्रक्रिया करते हैं और उसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं. तो वो वैल्यू ऐड करने के बाद उसका महत्व बढ़ जाता है. जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आम की केरी है और उसकी केरी का रस बनता है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है. बट इसमें कुछ हम एक खाने लायक प्रिजर्वेटिव उसको ऐड करके हम काफ़ी समय तक, मतलब 6 से लेके 12 महीने तक के उसकी लाइफ हम बढ़ा सकते हैं. इसका जो एक प्रक्रिया है उसको हम मूल्यवर्धन कहेंगे. गेहूं के बारे में, अगर अनाज पाक के बारे में कहेंगे तो गेहूं से बनने वाला उसका जो आटा है, ये उसका गेहूं का एक पैसा मिलेगा आपको, बट उसका एक फ्लोर बनने के बाद, एक आटा बनने के बाद आपको एक वैल्यू ऐड होने वाला है उसमें. तो इसको एक मूल्यवर्धन, एक ग्रेन क्रॉप के कंसर्न में कहा जाएगा. तो इस तरीके से हम कोई चीज़ का मूल्य बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको मूल्यवर्धन कहते हैं. यानी कि किसान जो भी उत्पादन होता है सीधे बाजार में ना बेचते, उसमें कुछ ऐसा कुछ किया जाए, उसका रूप बदला जाए जी. और लंबे समय तक उसको रख सके. राइट. जैसे बात शुरू में की आम, तो जी. आम में ज़्यादातर आज तक तो पुरानी पद्धति से चलता आया है. अपने खुद भी जानते हैं, हमने खाया भी है कि आम में से अचार बनता है जी. और पूरे 12 मास हम खाते हैं. जी. लेकिन आप जैसे साइंटिस्ट ने उसमें बहुत इम्प्रूव किया है कि आम में से अचार तो बनता आया है, वो तो बढ़िया है, जी. लेकिन आम में से ये मूल्यवर्धन की बात करें, बेचने की बात करें, बाजार व्यवस्था की बात करें, ज़्यादा मूल्य कमाने की बात करें, तो और कौन कौन से फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या क्या उसमें से व्यंजन बनाया जा सकता है ये ज़्यादा कमाने के लिए, आम की बात करें तो. नहीं, बहुत खूब कहा आपने कि आम का अचार तो हमको पता है और हमारे डेली खाने में आम का अचार हम यूज़ करते ही है. पर अभी वहाँ तक के हमारे खेडूत भाइयों को सीमित ना रहते हुए आगे आम का पापड़, ये एक कंसेप्ट है जिसको इंग्लिश में मैंगो लीदर कहा जाता है. तो हमारी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत एक पहल की है और गोधरा कॉलेज में भी इसमें रिसर्च चल रहा है, गोधरा इंजीनियरिंग कॉलेज में. और हमें कुछ चीज़ें सामने आई है कि आम का जो पापड़ बनता है मैंगो लीदर, उसमें हम प्रोटीन भी एनरिच कर सकते हैं.
जैसे प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। अभी आप कहोगे कि मैंगो में ऑलरेडी आपका एक प्रोटीन है, बट जो एक प्रोटीन हम सामने से ऐड करेंगे वो उसका एक मूल्य बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो वो हम केसिन के फॉर्म में लेते हैं, जैसे दूध का जो केसिन मिलता है उस पाउडर को हम ऐड करके उसका मूल्य बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो अभी आप सोचोगे कि आम का पापड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसकी वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, ठीक है। हम घर पे तो बना लेते हैं, तो घर पे भी मैंगो पापड़ बन जाता है, पर एक उत्कृष्टता जो बोलते हैं क्वालिटी की, वो अगर मेंटेन करनी है तो आपको कुछ विधि फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आपके साथ वो साझा करना चाहूँगा कि जैसे आपको देखो, आप खेडूत भाइयों और बहनों, आपको मार्केट में आम मिलता है, तो जिसमें से हमको राजापुरी और तोतापुरी केसर की पल्प के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आम को जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि उसको मैंगो लीदर बनाने के लिए एक पक्का रेशेदार रहित आम को हमको चूज़ करना है, जैसे हापुस और केसर है। इसके बाद आम को छीलकर उसका जो फ्लेश बोलते हैं, जो गुदा बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, उसको निकाला है। उसको बाद उसको छालनी से, जो पर्टिकुलर एक स्ट्रेनर होता है चलनी से, उसको छाना जाना है, ठीक है। तो ताकि क्या जो रेशे ऊपर रह जाए और छना हुआ आपको पल्प मिले, मतलब प्यूरिफाइड पल्प मिले। उस पल्प को हम 5 से 10% चीनी उसमें हम ऐड करेंगे, जिसको उमेरना बोलते हैं गुजराती में अपन, वैसे उमेरेंगे। उसके बाद 0.3% साइट्रिक एसिड, ये हम उसको मिलाएंगे। घर पे अपनी जूनी रेसिपी के हिसाब से वो आम पापड़ बना देते हैं, लेकिन वो लंबे दिन तक रहता नहीं है, वो उसकी अवधि बहुत कम रहती है। लेकिन ये आम का पापड़ की बात आप लाए हैं, तो ये बताइए कि आम का पापड़ वैज्ञानिक तरीके से कैसे बनाया जाए। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत ही एक बढ़िया सा टॉपिक आपने छेड़ा है कि आम का पापड़। तो आम का पापड़ अगर आप देखिए तो जनरली हम पल्प निकालने का प्रोसेस जानते ही है कि जैसे केसर आम है, हापुस है, इनका हम पल्प निकालते हैं। इनमें कम से कम रेशे रहते हैं, और कम रेशे होने के कारण इसका पल्प का रेशो हमको ज़्यादा मिलता है। और ये पल्प के रेशो को अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, जैसे गुजराती में बोलते हैं वैज्ञानिक दबके, ठीक है, कि अगर हम इसको काम करेंगे तो इसका जो एक शेल्फ लाइफ है, उसको जो टिकाने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि जैसे आपने पक्के रेशेदार रहित आम को आपने लिया, जो हापुस और केसर वैरायटी है, उसका आम का ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल के आपको क्या करना है, पल्प उसका इकट्ठा करना है। वो पल्प को एक छन्नी से छान लेना है ताकि आपको रेशे रहित आपको पल्प मिले। और उस पल्प में आप 5 से 10% चीनी को ऐड करना है, जिसको शुगर कहते हैं आप लोग, खांड बोलते हैं, उसको ऐड करना है। 0.3% आपको साइट्रिक एसिड का ऐड करना है, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। और आपको 200 से 250 पार्ट पर मिलियन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालना है, ये भी खाने योग्य प्रिजर्वेटिव है। इसको अच्छे से मिलाकर आप लोग 3 से 5 mm मोटाई इतना एक ट्रे में आप रखकर उसको ट्रे ड्रायर में अगर आप सुखाते हो 50 से 60 डिग्री के लिए 8 घंटे के लिए, तो आपका मैंगो पापड़ अच्छे क्वालिटी का मैंगो पापड़ बनके रेडी हो जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ लगभग 6 से 12 महीने, मतलब 1 साल तक के आप आने वाले अगले सीजन तक का भी आप उसका एंजॉय कर सकते हो। क्या बात है। लेकिन ये आम का पापड़ बन तो गया, आपने पूरी विधि बताई इस हिसाब से, तो रखने के लिए क्या कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए? कैसे रखा जाए, किसी डब्बे में रखा जाए या कैसे रखा जाए? जी सही बताया आपने कि मैंगो पापड़ एक बार तैयार हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि हमको जैसे वैज्ञानिक तब के इंश्योर करना पड़ता है कि उसका जो पानी का प्रमाण है, जैसे मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं बेज, वो 15% या उससे नीचे रहना चाहिए, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया या मोल्ड की ग्रोथ ना हो जाए, ताकि वो खराब नहीं हो जाए। तो इसके लिए पैकेजिंग और संग्रहण, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैकेजिंग जो करेंगे हम, ग्रेड पॉलीथीन, जो फूड ग्रेड पॉलीथीन रहती है, लैमिनेटेड पाउच, उसमें हम पैक कर सकते हैं। एयर टाइट पैकेजिंग को यूज़ कर सकते हैं और उसको ठंडी और सूखी जगह पर रख सकते हैं, ताकि वो 6 से 12 महीने तक अच्छा रह सके। क्या बात है। आम रस में से आम का पापड़ बनाने की विधि आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। आम में से ये अचार भी बनता है, तो आज के ज़माने के तरीके से अचार कैसे बनता है, या छुदा जो भी बनता है, उसके बारे में भी बताइए कि ये लंबे अवधि तक रहने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या तरीके रहते हैं? अभी देखिए, आम का अचार तो हम जैसे पारंपरिक पद्धति से बनाते हैं कि उसको हम पर्टिकुलरली एक नाइफ से कट करते हैं, फिर ओवरनाइट उसको हम रखते हैं, उसको हल्दी लगा के रखते हैं ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। और मॉइस्चर निकलने के बाद उसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर तिल का ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल, उसमें उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। बट आजकल क्या है, उसमें इंसानों का इंटरवेंशन, जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन बोलते हैं, कि वो ज़्यादा होता है।
तो आजकल हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या हमारे अगर प्रक्रिया विभाग बोलेंगे तो उसमें कुछ मशीनें आई है कि डाइसिंग मशीन्स, अगर उस मशीन में आप डाल दोगे तो आम के बराबर क्यूब्स जैसे क्यूब्स बनेंगे जो यूनिफॉर्म साइज के रहेंगे, सब एक सरखे, एक समान बनेंगे, जिसको डाइसिंग कहा जाता क्या है। बात है। वो डाइसिंग होने के बाद आपको एक मिक्सिंग मशीन मिलेगा। तो वो मिक्सिंग मशीन में आप जो भी ऐड करना चाहते हो उसमें मसाला है हल्दी मसाला वो बराबर ऐड हो जाएगा और उसके बाद एक फ्रायर में तेल फ्राई होके वो उसको पर्टिकुलरली उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये जो अचार बनेगा इसको कांच के एयर टाइट जो एक हवाबंद डब्बे में आप रखोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, जो चिनाई माटे बोलते हैं। जी। और इसमें क्या है कि कोई हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे अभी हम पर्टिकुलरली काटने के लिए उसको मिक्स करने के लिए हम हाथ यूज करेंगे तो हाथ के कंटामिनेंट भी उसमें ऐड होंगे। तो हम इंजीनियरिंग इंटरवेंशन से भी उसी पारंपरिक पद्धति को एडवांस पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके अचार को कई गुना आगे तक लेके जा सकते हैं, जिसका खराब होने का समय है जो शेल्फ लाइफ बोलते हैं वो बढ़कर कई गुना कई महीने ज्यादा बन जाए। से साहब, ये अचार बनाने में आपने भी अनुभव किया होगा जी। कि जब बनता है तब भी बच्चों को दूर रखते हैं, हाथ मत लगाओ, जी। और बन जाने के बाद जिसमें बरनी में रखते हैं उसमें से निकालने के टाइम भी बोलते हैं हाथ से मत निकालो, किसी साधन से निकालो या चमचा ले लो। तो उसके पीछे का क्या कारण है? जी जी, बहुत खूब कहा आपने। एक्चुअली सर, हमारे हाथों में कंटामिनेंट होते हैं, हमारे हाथों में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं कि जो जैसे ही अगर हम उसको टच करेंगे किसी ऐसे जगह से, ऐसे हाथों से कि वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए एक साफ सुथरा एक चम्मच जो है जिसमें कोई पानी का भी टच ना हो, जिसमें कोई पानी भी नहीं रहे, और ऐसे चम्मच को आप निकालने के बाद वो पर्टिकुलर अचार निकालने के बाद उसको वापस से आप ठीक से करके दूसरी बार इस्तेमाल करते वक्त भी सूखा ही चम्मच यूज करना है आपको। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज से आप उसको टच मत करो जिससे बैक्टीरिया बढ़ जाए। सर साहब, एक आम के रस तो खा लिया, लेकिन गुटली में से भी क्या कुछ व्यंजन बनता है और बनाने की विधि क्या रहती है? कि आम का हम प्रोसेसिंग करके 2 से 3 गुना हम जो इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे सर आपने बहुत खूब कहा कि आम की जो गुठली है उसमें बहुत ज़्यादा गुणधर्म है कि जो हमारे इंसानों के मतलब फूड हैबिट को सुधार सकते हैं। जैसे कि आम की गुठली आपने देखा कि उसके अंदर जो कोर है आम का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मुखवास करके भी यूज कर सकते हैं। ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है और ऐसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स उसमें मौजूद है। तो अभी इसको निकाले कैसे? तो जो आपकी आम का गुठली होती है जिसको स्टोन कहा जाता है इंग्लिश में, उसको बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद उसको पर्टिकुलरली वो जो बॉईल हो जाता है तो वो अपने आप क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद उसके अंदर का जो एक मेन कोर है वो कोर को निकाल के हम लोग ड्राई करते हैं। तो वो ड्राई करने के बाद फिर हम उसको ट्रे ड्राइंग में, या फिर आपके पास ड्रायर नहीं है तो आप उसको 2 से 3 दिन धूप में भी सुखा सकते हैं। फिर उसको घी में तल के या पर्टिकुलर नमक का थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करके आप लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मुखवास में भी यूज आएगा और पर्टिकुलरली आपको उससे विटामिन और मिनरल्स भी मिलेगा। इसका जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने से लेके 12 महीने तक भी रह सकता है। क्या बात है, ये साल का अगले साल तक खा सकते हैं। तो अगले साल तक नया जब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैंगो नहीं आएगा, तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं सर। मतलब पूरे 12 साल तक अगर कैरी का टेस्ट लेना है तो ले सकते हैं। बहुत सारे व्यंजन आपने बताए। थोड़ी बात करनी है सीताफल की, क्योंकि सीताफल भी ऐसा फल है जब मार्केट में आता है तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सस्ते दाम में भी मिलते हैं, और किसानों के घर के आसपास बाग बगीचे में जब लगते हैं ये सीताफल तो बहुत सारी मात्रा में लगते हैं। खाए तो कितना खाए, फिर बिगड़ता है। फिर याद करते हैं कि अगर ये सीताफल 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मिलता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये फिर तरसते हैं ऐसा टेस्ट पाने के लिए। तो सीताफल में से क्या कुछ ऐसे व्यंजन बना सकते हैं या पूरा साल खा सकते हैं? सुना है कि उसमें से आइसक्रीम भी बनता है, तो ये पूरी विधि बताइए कि क्या सीताफल में से सही में बनता है और पूरे साल तक हम क्या खा सकते हैं, सीताफल का टेस्ट ले सकते हैं? जी, बहुत खूब कहा सर आपने, और बिल्कुल मेरे दिल की बात कही कि आपको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है भाइयों और बहनों खेडूतों कि सीताफल के लिए एक पल्पर चाहिए होता है, एक मशीन चाहिए होता है। तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं एज अ साइंटिस्ट हमने एक मशीन बनाया है कि ऊपर का जो कवर है सीताफल का उसको आप जनरली कट करते हो 2 हाउस में, मतलब 2 हाफ हो जाते हैं, और फिर चम्मच से आप स्कूपिंग करते हो। और वो स्कूपिंग करने के बाद जब हमारे मशीन में डालेंगे तो उसका बीज अलग हो जाता है और पूरा फ्लेक्स अलग हो जाता है। बाकी जो इंडिया में मशीन्स अवेलेबल है वो उसका क्या कर देती है, पानी कर देती है। तो हम पानी नहीं बनाते हुए उसका फ्लेक्स बनाते हैं। अभी आपको मैं फ्लेक्स की आइडिया दूंगा। तो जैसे आप आइसक्रीम, वो जो फ्लेक्स है उसकी आइसक्रीम बनेगी। ये आइसक्रीम जब आप टेस्ट करोगे तो आपके जबान पे आपको वो आइसक्रीम का
हमारे प्रोसेसिंग के लैंग्वेज में उसको पैलेटेबिलिटी बोलते हैं, तो वो आपको महसूस होगी कि जब खा रहे हो तो आपको लगेगा मैं कोई आर्टिफिशियल सीताफल का सेंट नहीं खा रहा हूँ, मैं रियल सीताफल खा रहा हूँ। और इसके लिए वो मशीन्स हमने जो बनाया है उसका हमने पेटेंट लिया है सर, और बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हमें उसका जो मशीन का 20 साल का राइट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया है। क्या बात है। और मैं उसका एक वन ऑफ द मेन चीफ साइंटिस्ट हूँ कि जो मशीन हमने बनाया। बहुत और सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से हम आपको अभिनंदन देते हैं कि आपने बहुत बढ़िया इनोवेशन किया है। खास करके यहाँ के पंचमहाल दाहोद डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे तालुके में ये सीताफल बहुत अच्छी तरह से होता, बहुत मात्रा में होता है। तो क्या ये कोई किसान उसको खरीदना चाहता है तो क्या लागत लग सकती है और कहाँ से मिल सकता है? तो पहले तो जैसे ये सीताफल का जो अपना सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोग लेकर आते थे और 2 दिन में सीताफल खराब हो जाता था। तो ये हमने प्रक्रिया जब हमारे ध्यान में आई कि ये 2 दिन में खेडूत भाई बहन लेकर आ रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन लेके आ रहे हैं और 2 दिन में प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है, तो उसके लिए हमने ये मशीन्स बनाया। ये मशीन्स की जो लागत थी, ये हमने पूरा ट्रायल एरर जब मशीन्स बनाया तो 1,70,000 थी, और उसको धीरे धीरे फिर हमने जब मेजर क्वांटिटी में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी जब सब्सिडी दे देगा तो इसका कॉस्ट हमारा 50% हो जाएगा, 80 से 90 हज़ार हो जाएगा। जो अभी अगर आप हाथ से सीताफल का फ्लेक्स निकालोगे तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। वही प्रोसेस हमारा मशीन 1 घंटे में कर देता है। तो लगभग 70 से 80 किलो का जो सीताफल का प्रोसेसिंग है वो 1 घंटे में हो जाता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट यहाँ की किसानों की जो पानी में होता है, सिंगोड़ा। ये सिंगोड़ा भी जब ये ठंड की ऋतु में आता है, बहुत आता है। सिंगोड़ा में से ऐसे तो बहुत सारे आइटम बनती है सालों से, उसका लोट बनाते हैं, आटा बनाते हैं, आटा में से बहुत सारे उसकी रेसिपी बनती है। लेकिन किसान के हाथ में कुछ नहीं आता, किसान तो ऐसे ही कच्चे बेच देते हैं। तो किसान का पैसा किसान को मिले, किसान के प्रोडक्ट का पूरा मुनाफा उसको ही मिले, इसके बारे में क्या कुछ रिप्रोसेसिंग किया जा सकता है, मूल्यवर्धन किया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे? ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। सिंगोड़ा ये एक एक्वेटिक क्रॉप है, मतलब ये पानी पे होने वाला क्रॉप है। और इस क्रॉप में जो अगर लागत बोलोगे तो लागत इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट खेडूत के हाथों में क्यों कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो प्रक्रिया विभाग है, उसकी जो प्रक्रिया है, जैसे सिंगोड़ा आप लेते हो और उसको मतलब बॉईल करने के बाद आप लोग नेक्स्ट डे उसको खाने के लिए लेकर आते हैं। पर हमने एक संशोधन किया है कि सिंगोड़े को जो ये बॉईल करते हैं तेल, पर्टिकुलरली दाहोद में मैंने देखा है कि एक भोई समाज जो होता है वो अपने 15 लीटर के तेल के डिब्बे में उसको बॉईल करता है। उसके बाद उसमें ब्लैक कलर आने के लिए उसमें ग्रीन विट्रियोल एक केमिकल डालते हैं। तो नो डाउट ग्रीन विट्रियोल मतलब एडिबल पोर्शन से कुछ प्रमाण में, पर अगर इसका एक्सेस हो जाता है तो ये आपके बॉडी में अंदर थोड़ा सा डीएनए को डिस्टर्ब भी कर सकता है ऑक्सीडेशन करके। तो कल जाके आपको कोई दिक्कत भी हो सकती है। जी जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो वो केमिकल रहित अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके लिए हमने एक संशोधन किया कि सिंगोड़ा के लिए हमने एक मशीन बनाई कि जो प्रेशर वेजल जैसा काम करे, कुकर जैसा। तो जो लोग उनको 4 घंटा लग रहा है बॉईल करने के लिए, वो हमने वो प्रोसेस को 40 मिनट्स में कर दिया। क्या बात है। 40 मिनट में साइंटिफिक तरीके से। फिर उसके बाद उसको जो उसके अंदर का जो गर्म पानी था उसको निकाल देने के बाद छिलका और अंदर का जो व्हाइट पार्ट है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो उसके अंदर थोड़ा गैप रह जाता है कुछ mm का। और फिर हमने एक ऐसा मशीन बनाया कि जिसमें डालते ही ऊपर का छिलका अलग हो जाएगा और वो जो व्हाइट पार्ट है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद वो जो व्हाइट पार्ट आया है सर, उसको हम हमारे ड्रायर में, ट्रे ड्रायर हमने बनाया है, तो उसमें हमने ड्राई किया उसको। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये हमने 19 घंटे में पूरी कर दी। यही इंडस्ट्री को अगर पाउडर बनाना है तो उसको इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। वो तालाब से निकालते हैं, उसको सुखाते, और सुखाने के बाद डायरेक्टली मशीन में डाल के उसका पाउडर बना देते। तो उसमें क्या होता है कि जो उसके ऊपर के कवर पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है वो एज इट इज रहता है। पर हमारे केस में हमने क्या किया, पहले उसको बॉईल किया तो आधे बैक्टीरिया वह खत्म हो गए, फिर ऊपर का छिलका निकाल दिया तो पूरे बैक्टीरिया खत्म हो गए। और ये प्रोसेस जो इंडस्ट्री को ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा बताते हैं कि 20 दिन का समय लगता है, तो उसको हमने 19 आवर्स में, मतलब 1 दिन से कम समय के अंदर हमने पूरा उसको बॉईल किया, ऊपर का कवर निकाला और उसका पाउडर बनाया। तो ये सब 19 घंटे में कर दिया। तो 19 घंटे में अगर फार्मर कोई चीज मार्केट में लेके आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप बताइए उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो उसको 20 दिन रुकना है वो 1 दिन में बना के लेकर आ रहा है। बिल्कुल। बहुत मतलब कि सिंगोड़ा ऐसे भी
बाजार में तो बिकता है, किसान को तो क्या है कि वो काट के बेच देते हैं लोग, फ्रूट की लारी पर से जैसे फ्रूट लेते हैं ऐसे लेते हैं, वही दाम मिलता है। लेकिन इसमें से रिप्रोसेस करते हैं, उसका मूल्य वर्धन करते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा मुनाफा भी मिलता होगा, उसका भाव भी बढ़ जाता होगा। एक्चुअली जो पाउडर हम बना रहे हैं वो पाउडर बिल्कुल बैक्टीरिया रहित पाउडर बना रहे हैं। तो नवरात्रि में हम जो उपवास के लिए यूज करते हैं, जी जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा प्योर क्वालिटी का मैं सिंगोड़े का लोट यूज कर रहा हूँ, आटा यूज कर रहा हूँ, पर वो मार्केट में शायद वैसी पॉसिबिलिटी कम होती है। जी जी, बट हमने हमारे आंखों के सामने हमने पूरा प्रोसेस किया, जिसमें उसको बॉईल भी किया, उसका छिलका भी हटा दिया, उसको ड्राई भी किया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, आपको मुझे बताते हुए सर एक आनंद होता है कि अभी जैसे लोग जंक फूड खा रहे हैं, तो ये जंक फूड खाने की वजह से और रोटी की तादाद ज्यादा खाने की वजह से हमको क्या होता है, ग्लूटेन वाला एक कंटेंट होता है ग्लूटेन, उसके कारण सीलियाक डिसीज हो रहा है। और सीलियाक डिसीज ये होता है कि जो भी हम खाते हैं वो पचता नहीं, वैसे के वैसे निकल जाता है। तो ये ग्लूटेन के कारण होता है। पर सिंगोड़े के लोट में ग्लूटेन वाला तत्व बहुत कम है। तो अगर हम चपाती बना रहे हैं उसमें अगर 10 से 20% हम सिंगोटे का लोड ऐड करेंगे तो उसका ग्लूटेन कंटेंट जो ग्लिसेमिक इंडेक्स नाम है वो 50% से कम हो जाता है। तो उसको वो जो होने वाली बीमारी सीलियाक वाली वो कम हो जाएगी और वो ज्यादा उसका आयुष्य जो है, आयुर्मान है, वो बढ़ सकता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये सिंगोड़े का लोट रिप्लेस करें 10 से 20% आपके लोट में, आपके गेहूं के आटे में ये उसको रोजाना मिला सकते हैं जी, और उसमें से रोटी भी बना सकते अब हैं। जैसे मल्टीग्रेन का कंसेप्ट है कि उसमें सोयाबीन का भी लोट चाहिए, अलग अलग लोट चाहिए, तो हमने ये भी प्रूफ किया है कि सिंगोड़े का भी लोट अगर आप 50% रिप्लेस करेंगे कोई भी रेसिपीज में, ब्रेड की हो या रोटी की हो या जो भी, तो उसका वो ग्लूटेन कंटेंट कम कर देगा। बिल्कुल। और गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे तो ये सिंगोड़ा का सीरा बनता है, स्वीट जैसा रहता है सिंगोड़ा का सीरा। और आपने जैसे बताया कि ऐसे ही सिंगोड़ा बेचने की जगह से उसमें से आटा बनाए और किसान खुद अपने आप बेचे लोगों तक, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सैयद साहब, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आपने बहुत सारी बातें बताई। आम गुटली के भी दाम, ऐसे आम में से भी क्या बन सकता है, सिंगोड़ा में से भी क्या हम ज़्यादा वैल्यू एडेड कर सकते हैं, और साथ साथ में आपने यहाँ का सीताफल है, इसमें से भी वैल्यू एडेड करके कैसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में बात बताई। आज आपने आपका कीमती वक्त दिया, हम आकाशवाणी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી હમણાં સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી। અને મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે અમો હતા કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલ। આ સાથે જ કાર્યક્રમ અહીં પૂરો કરીએ છીએ। તો કાર્યક્રમથી છૂટા પડાની આપશો રજા। हे 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 हो आ जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे, जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे, जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे, जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे। धरती नो छे छोरू मनरू एनु भोळू, धरती नो छे छोरू